Well, thank you very much for being with us, and it was a wonderful evening. As usual, every year we hold this convocation, and the importance of Whistling Board, the educational philosophy of Whistling Woods, the movement of Whistling Woods. Needless to say, anything. But the special day today is definitely because of the two legends we have honored Master Awards. One is Mr. Shyam Benegal, the legendary filmmaker, and my friend and a superstar and legend actor, Mr. Shatrughan Sinha. And I know that you would like to talk to him more than me. You see. But this is a very academic moment for the students, where the students are excited to enter into a media industry after graduation. And we are very much sure about this. At least we do not know that how much we grow them, but we know that we grow them as a person, as a human, as a disciplined person. This is the first philosophy we see to it, that they become a better person, an intelligent person, to grow and groom their talent. Because 2 साल में 3 साल में कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, हमको 15 साल लगे समझने के लिए कि आगे काम कैसे करना है. You see, and I'm very thankful to Mr. Sinha, you are here, and thank you, Meghna, for taking forward this Whistling Wood in such a brilliant manner and with such a discipline. And I'm proud of my daughter, I would say. Any question, please do ask. सर, फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्मों की बात कर रहे हैं. फिल्मों उस दौर में और इस टाइम में जो अब सिखा रहे हैं आप बच्चों को, क्या कुछ बदलाव आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में? You see, the knowledge and information have grown beyond limit. What we had knowledge in 80s, 90s, or 70s. You see, we have books, other teachers, other elders to teach us. But today, younger children, we see that they already are full of knowledge and information through the net, the social media. So this is total different generation. But what we share with them, ki children, you have a knowledge, you have information. What you don't have is an experience. So we share as a mentor our experience. We share our experience to them. How you have to go towards the goal, and how you should groom yourself, your talent or your wisdom and your other qualities, more than the knowledge and information. Because abhi to knowledge and information ka competition common ho gaya with all those generation numbers over there. So what we tried, we groom them as an artist, as a technician. That is our philosophy. शत्रुघ्न सर, आपसे सवाल है कि जैसे आज आप न्यू टैलेंट से मिले हैं बहुत सारे लोगों से, और आज जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है, एक बहुत बड़ा कंपटीशन है न्यू कमर्स के लिए, तो आप क्या सोचते हैं उस पर? नहीं, कंपटीशन तो है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जाएगा, और उसमें जब गोइंग गेट्स टफ, दैट टफ गेट गोइंग. जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जो ज़्यादा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसकी वजह से कंफर्ट लेवल होगा, वो आगे बढ़ेगा. लेकिन आजकल बहुत कम मौके होते हैं जो न्यू कमर्स को मिलते हैं, कि ज़्यादातर कि जो इंडस्ट्री के अंदर से ही जो टैलेंट आता है वो बहुत ही आसानी से उन्हें मौके मिल जाते हैं. ये कहने की बात है, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा. अगर जो अल्टीमेटली किसी का टिकना, किसी का ठहरना, किसी का आगे बढ़ना पूरे देश की जनता के ऊपर निर्भर करेगा, नो ऑडियंस के ऊपर. कटिंग अक्रॉस द स्टेट्स, सिर्फ बिहार से और यूपी से होने से नहीं काम चलेगा, पूरे देश के लोगों को अगर पसंद आएगा. आपने कितने स्टार सन्स को, फिल्म मेकर सन्स को देखा है जो आए हैं, बहुत अच्छा किया है, और कई लोगों ने अच्छा नहीं भी किया, जो आए और उसके बाद फ्राइडे नाइट के बाद गायब भी हो गए. अल्टीमेटली उसको फ्राइडे नाइट के बाद जो है वो ऑडियंस ही उसका फैसला करती है. इसलिए अगर बुरा नहीं है, अगर हमारे घर से हमारे बच्चे अगर आ रहे हैं इसमें, जिनके अंदर एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, तो उनको रोकने का हमारा कोई हक नहीं बनता है. पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर से अच्छे लड़के आ रहे हैं हम उनके कॉस्ट पे, उनकी कीमत पे ऐसा कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. बाहर के भी साथ आते हैं, हमारे घर के भी आते हैं, लेकिन वो मेहनत करके उनका टैलेंट क्या है, उनके अंदर जुनून क्या है, पैशन क्या है, वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं, और वो ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट कर रही है, इन सारी चीज़ों को मिला के चल रहा है और चलता रहेगा. Congratulations, sir, for the award, and to you also for completing 10 years. बहुत उतार चढ़ाव वाले रहे हैं ये 10 साल आपके लिए. जी हाँ, उतार ज़्यादा रहे हैं, चढ़ाव कम रहे हैं. अब तो चढ़ाव ही है ना सर? जी, अब तो बिल्कुल चढ़ाव है. क्योंकि जो मैं उसको पूरा क्रेडिट मैं अपनी टीम को दूंगा, मेघना, राहुल पुरी, चैतन्य, सबको,
कि इन्होंने एकदम कर्मठ और निष्ठा से ठान लिया किसी इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को नहीं गिरने देना है, भले हमें फाइनेंशियली कितना नुकसान हो, मेहनत कितनी करनी पड़े और अपोजिशन कितनी सहनी पड़े, आप सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि हर कॉस्ट के ऊपर वो डबल ही मेहनत करते चले गए, तो चैलेंजेस को मीट करते चले गए। आई एम हैप्पी आज हमारे पास पार्टनर्स जो हैं वो सोनी है या यूट्यूब है या गूगल है या फॉक्सकॉन है, इस तरह के लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी हमारे पार्टनर हैं। सोनी जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने हमें यूनिवर्सिटी का लेवल दिया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस होल टीम, आई वुड से, इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्राइसिस वी फेस्ड एट विस्लिंग वुड्स। सर 5 दशक का समय हो गया इनसे दोस्ती के, 10 साल बाद याद आई मतलब आपको, मतलब उसके पहले जगह नहीं थी, बाकी लोगों को मिल रहा था अच्छे अच्छे लोगों वही मतलब ऐसा देखिए, मैं तो ऐसा होता है ना, घर वालों को तो होम कभी भी टीम, दे सकते होम टीम। हैं, घर वालों को तो कभी भी दे सकते हैं इसी। तो ये है कि पहले हमें जो लीजेंड थे लाइक यश चोपड़ा, शम्मी कपूर जी, देवानंद जी, इतने लोग थे जो इनसे भी सीनियर हैं इसी, और करते करते पहले इनका मान तो हम रोज़ करते हैं, उनका मान हम कभी कभी करते हैं। सर मेरी सहयोगी ने जो बात कही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, पर ये जो जैसे कह रहे थे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं, इसी विषय को आजकल हास परिहास के रूप में लोग करने लगते हैं, वो ठीक मानते हैं आप? जैसे कभी अवार्ड फंक्शन में हमने देखा कि लोग उस चीज़ को लेके हास परिहास कर रहे हैं। डू यू फाइंड दिस? किस चीज़ को लेके? क्या कहते हो शब्द को? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। हाँ, देखिए मैं आपको ये बात बिल्कुल बता दूँ कि ये 2 बंदे तो आपके सामने बैठे हैं 40 साल से, जी जो किसी भी फिल्म फैमिली के नहीं थे। जी जी। ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें जात पात धर्म परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ टैलेंट का कंपटीशन है। उनके भी बच्चे जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं तो आ जाते हैं, अगर नहीं है तो रह जाते हैं, और देश के भी जितने बच्चे हैं टैलेंटेड हैं वो आ जाते हैं, चाहे दिल्ली से हों या पटना से हों या उधर से हों। कंपटीशन जो है इस सबसे खूबसूरती फिल्म इंडस्ट्री की यही है कि इसमें कुछ भी नहीं चलता है सिवाय टैलेंट के और मेरिट्स के। मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने विस्लिंग वुड्स का सोचा, एक विजन बनाया कि विस्लिंग वुड्स खोलना क्यों है हमें, तो तब पापा ने यही कहा था कि जब मैं आया था विस्लिंग बॉम्बे में, मुंबई में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे जैसे लोगों के लिए, तो विस्लिंग वुड्स का आना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि हम उन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन बच्चों को भी जो आप गॉड फादर कहते हैं इंडस्ट्री में, उनको विस्लिंग वुड्स का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको चांसेस मिल रहे हैं और सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है, बढ़ाया जा रहा है, बट आई फील विस्लिंग वुड्स का एक एडवांटेज ये है कि हम उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिनका कोई फिल्म कनेक्शन नहीं और है। इंडस्ट्री से कनेक्ट रहता है जी। होल इंडस्ट्री कम हियर एंड टीच देम। तो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी वेटरन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और बच्चों का कनेक्ट रहता है, और ये बच्चे सब भारत से आए हुए हैं और फिल्म वालों के भी बच्चे हैं। आप ये फिल्म के परिवार के हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों की ट्रेनिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है, वो 10 साल में ही सीख लेते हैं अपने माँ बाप से एक अच्छी बातें या अच्छे गुण। ये उनके पास प्लस पॉइंट तो ज़रूर है, लेकिन आखिर में जो ठहरते हैं वो कंपटीशन में ही ठहरते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उनको जल्दी मिल सकती हैं, लेकिन फाइनली कौन ठहरता है वो तो कंपटीशन है, मेरिट्स है। इनकी बात को, एक मिनट, तुम्हारी बात को, इनकी बात को समअप कर सकूं 1-2 सेंटेंस में, तो यहाँ पे कलर ऑफ सक्सेस एक्सेप्टेबल है बिल्कुल, और स्मेल ऑफ फेलियर चाहे कहीं से भी आए, किसी क्वार्टर है, जो आदमी फेलियर है, सो कॉल्ड फेलियर, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। कलर ऑफ सक्सेस चाहे जहाँ से आ जाए, तिब्बत से आ जाए कि आपको टिम्बकटू से आ जाए, कि डैनी डेंजोम्पा आए, कि मिठुन चक्रवर्ती आए, कि शत्रुघ्न सिन्हा है, कि अमिताभ बच्चन। अगर इनकी कहानी में सक्सेस लगता है तो परिवार से आए, कि परिवार, हम लोग परिवार से नहीं आए कोई, लेकिन आए हैं नहीं है वो मैटर नहीं करता। टैलेंट बोलता है, ये क्या है टैलेंट। पर इस चीज को मजाक बना देना होता है कि कोई स्टेज पर मजाक तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को, मजाक तो आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड करके मजाक बनाया। सबसे पहले तो आपने किया इसको बॉलीवुड का नाम। बॉलीवुड कहाँ से है ये बॉलीवुड है क्या? क्या कॉपी? हम लोग कॉपिस्ट क्या आर वी कॉपिस्ट? यू वांट टू से कि बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड का कॉपी है, ये उन्होंने कहा था और हमने अपना लिया। आपने मंजूर कर लिया कि हम लोग नकलची हैं सब। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर कुछ नहीं है, हिंदुस्तानी फिल्में नहीं बनाते हम लोग, हिंदी फिल्में नहीं बनाते, उनकी कॉपी करते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि ये बॉलीवुड है। लेकिन सर जिस तरह से अभी एक रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में करण जौहर, वरुण धवन और कुछ लोगों ने जिस तरह से मजाक उड़ाया
कंगना रनौत का हमने देखा नहीं वो प्रोग्राम, तो हमें उसको कमेंट नहीं कर सकते। हमने सुना नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे उन्हें बोला सर, नहीं। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगी कि आज के वक्त में डिजिटल वर्ल्ड है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ट्रोलिंग बहुत होती है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आज ही इरफान पठान ने अपनी वाइफ के साथ अपनी पिक्चर डाली थी जिसको काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया ये कह के कि गैर इस्लामिक है। क्या अपनी पिक्चर्स डालना या अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं उस पर रोक लगाना किस हद तक सही या गलत है? सोशल देखिए, सामाजिक बर्ताव को और व्यवहार को पे टिप्पणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश 125 करोड़ का देश है और विभिन्न लोग, जातियाँ, धर्म, रीति रिवाज, अपने इंडिविजुअल्स लेवल हैं, स्टाइल हैं, एक्सप्रेशंस के, इंटरेक्शन के। आप हर एक पर टिप्पणी करने लगेंगे तो आप खुद भी अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि हमारे को अलग तरीके से जीने दें और हम खुद जितने सुंदर से तरीके से जी सकते हैं वो जिएँ। टिप्पणी करना कोई एक अच्छी बात नहीं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, ठीक कहा सुभाष घे ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जियो और जीने दो। लेकिन आपने जो बात की, मैं ट्वीट करता हूँ डिफरेंट इश्यूज़ पे, बहुत सारे ट्रोल्स आते हैं, कई पेड होते हैं, कई चमचेज होते हैं, कई सिखाए हुए होते हैं, कोई भेजे हुए होते हैं, कई जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो फिक्स किए हुए होते हैं और वो करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, तरह तरह की बातें, मुझको हो, अनुपम खेर को, कि इनको हो, कि यहाँ तक रवीश को भी करते हैं और बाकी आप लोग भी शायद करते होंगे। तो लेकिन बेस्ट तरीका इसका यही है कि वो जो आपको गालियाँ दे रहे हैं उसको पढ़ो ही मत, देखो ही मत, हो सके तो उसको ब्लॉक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सर, अभी हम ट्वीट की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री में यू आर वेलकमिंग न्यू टैलेंट व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, बट since a couple of years and it has been very prevalent that there's certain amount of, it's said that there's certain amount of racism prevalent in the industry, and people are being, and this is not many actors have cited couple of examples. So we talk about advertisements showing, defining or stereotyping beauty in a certain way. Not only that, now even Nawazuddin Siddiqui, who is known for his talent, has recently tweeted about the same issue. So what's your take on it? आपको क्या लगता है? Is it prevalent and how far is it justified for the new talent also coming in? ये तो एक विभिन्न विचार है, किसी को किसी तरह के नज़र आता है, पर ये आज से थोड़ी है। मैं तो जब से जन्म लिया तब से मैं सुन रहा हूँ ये बात, कभी काला, कभी गोरा, कभी सांवला, कभी गारा, कभी गोरा, ये तो चलता रहता है। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लोग जो है ना, थोड़े से ही लोग हैं जो इसके ऊपर कभी टिप्पणी कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। लेकिन कोई आम जनता अगर आप देखें और जो सभी लोग देखें, वो कभी भी टिप्पणी नहीं करेंगे इस बात पे, कभी भी इस पर कमेंट नहीं करेंगे। उनके लिए अच्छा इंसान और बुरा इंसान दो ही लोग हैं, काला गोरा, पिचा पीला वीला कुछ नहीं है। But sir, film industry में is it really prevalent because of that काफी टैलेंट को मौका नहीं मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी सोचा नहीं कि जब हमें किसी आर्टिस्ट को मैं लूँ और किसी के बाद एक्ट्रेस को या एक्ट्रेस को या टेक्नीशियंस को, तो मैंने कभी नहीं देखा कि ये कौन सी जाति से है, कौन से रंग से है। वो है तो है, वो चाहिए तो चाहिए, वो एक्टर है मेरे लिए, वो टैलेंट है मेरे लिए। एक लाइन में ऐड कर दूं इस पे, पहले हम मीडिया के अपने दोस्तों से भी अपील करते हैं कि काला गोरा का जिक्र जो किया है, फेयर एंड लवली और तरह तरह के जो ऐड चलते हैं और तरह तरह की बातें चलती हैं, मीडिया को भी बंद करना चाहिए। हमारे फ्रेंड से अपील है, वो आता है एक मीडिया एक ऐड देखता हूँ कि एक लड़की है और वो थोड़ी दूरी नहीं है, तो सामने कोई लड़का दूसरी लड़की थोड़ा ऐसे करता है कि कहाँ है, बाद में रो रही है, फिर अपने बहन तो दोनों खूबसूरत लड़कियाँ। अब इस तरह का ऐड नहीं आना चाहिए, आप डिमोरलाइज करता है, ये गलत संदेश देता है। इसे उसको मीडिया से भी अपील करते हैं, ऐसा मत कीजिए। और फिल्मों में जो सुभाष जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप नसरुद्दीन शाह भी चलेंगे, ओम पुरी भी चलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा भी चलेंगे, अमिताभ बच्चन भी चलेंगे। मैं तो अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल डेज का दोस्त हूँ, हम लोग सब हैं, हम देखते थे लोग क्या क्या कहते थे उनके बारे में, या मेरे बारे में क्या क्या कहते थे। डैनी डेंजोम्बा भी चलेगा, अगर आपका टैलेंट है, वो जो हमने कहा कलर ऑफ सक्सेस है, तो सब आपको सर आंखों में बिठाएंगे। सर मुझे आपका हो गया टाइम पास है, बोल। आप मुझे बताइए कि अब हम आपको और कहाँ देख पाएंगे, कोई फिल्म या कोई अभी मैं निगोशिएट कर रहा हूँ। हमने कहा फेलिसिटेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अवार्ड से काम और नहीं चलेगा। ये जो स्पीच उन्होंने दी वो काफी नहीं थी अंकल, अभी आपको आके पूरा मास्टर क्लास लेना है। इट वाज टू शॉर्ट, इट नीड्स टू बी अ प्रॉपर मास्टर क्लास सेशन। अभी नहीं वो मत कर देना कि ओवर। सर बताइए, मतलब क्या कुछ
गंभीरता से बताइए कि कुछ अभी हम देख पाएंगे आपको कोई फिल्म में, या कोई जैसे आप कॉमेडी में कई बार रहे हैं, तो कोई कॉमेडी शो में आना चाहेंगे कुछ ऐसा? देखो वो सही माने में तो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो गया हूँ। टेलीविजन भी किया, सिनेमा भी किया, पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ, स्टेज भी किया, सब कुछ। लेकिन इसके लिए अब समय भी चाहिए, समय की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्या क्या कर रहा हूँ, कितना और बहुत कुछ करना बाकी है, कितने पेंडिंग है इश्यूज, ये करके। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट या जो मेरे स्टेचर को बिफिटिंग माई स्टेचर, माई पोजीशन, माई एज, माई इमेज, उसके करते हुए उसके दायरे में आया, तो क्यों नहीं। हम लोग सब दोस्त हैं और हम लोग सब एक दूसरे की चाहत है, सब पसंद करते हैं एक दूसरे को, मौका आया तो जरूर करेंगे। क्योंकि आप जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं उस ऊंचाई का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। उसी ऊंचाई के स्तर पर कुछ चीज़ है वो तभी करेंगे। आप भी कर सकते हैं सर ऊंचाई का, मतलब उनके लिए कुछ? क्यों नहीं, हम तो दोस्त हैं। जब भी उस ऊंचाई की चीज़ मिलेगी तो ज़रूर मैं इनके पास जाऊँगा, एक डेट मांगूंगा। अंतिम सवाल पूछूं उससे पहले एक सवाल, आपकी बेटी भी बहुत अच्छा करी एंड आपके सन्स, एनी वर्ड्स फॉर 3 of them? क्या मतलब उनके लिए आपकी भावनाएं हैं इसमें? अब मैं समझता हूँ कि मैं काश कि आप अंदर होते वहाँ पे, जब मैं स्पीच में कह रहा था, उनके लिए क्यों, अपने बच्चों के लिए भी, तमाम न्यू कमर्स के लिए मैं मंत्र हमेशा उच्चारण करता हूँ कि इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट। इन केस यू आर अनेबल टू प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, देन प्रूव योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अपने आप को सबसे बढ़िया साबित करके दिखाओ प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, और अगर नहीं साबित कर सकते हो तो अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ, मंजिल मिलेगी। मिस सोनाक्षी के करियर से आप संतुष्ट हैं जिस तरह से चल रहा है? देखो, आर्ट एंड कल्चर में, शो बिजनेस में, फिल्मों में, आर्ट एंड कल्चर में कोई आखिरी घड़ी नहीं होती। जैसे पॉलिटिक्स के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती, उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में कोई आखिरी घड़ी नहीं होती। अब उसमें अभी जो कर रहे हैं लगता है और से अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी काम करते हैं, सुभाष गई इतने बड़े डायरेक्टर, इतने मंजे हुए हैं, फिर भी इनको लगता होगा आई विश इससे थोड़ा और अच्छा होता, ये कर देते हैं। हम भी आज तक कोई काम करते, मुझे लगता है ना 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 ठीक नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, और अच्छा करना है। तो वो जब तक ललक आपके अंदर नहीं रहेगी, वो कसक नहीं रहेगी, तो आपके अंदर का कलाकार जो है वो कुंठित हो जाएगा। इसलिए वो अच्छी बात है। मैं उसके कैरियर से ज़रूर बहुत खुश हूँ कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू हर, लेकिन साथ साथ मैं और चाहूँगा, और वो चाहती होंगी खुद भी, कि वो और अच्छा करें और इससे बढ़ के करें। लुटेरा उसकी इतनी अच्छी फिल्म थी, इतना बढ़िया काम किया था, वो सोचते हुए कि मैं आप दूसरी जगह करूँ, लुटेरा से और कीरा से बढ़ के करूँ, क्या नूर से बढ़ के करूँ, वो तो होती है ख्वाहिश। आपके जीवन पे खामोश फिल्म तो आ ही चुकी है, कोई फिल्म का भी कोई अनुमति देंगे किसी को? हाँ हाँ, लाइए ना, अच्छा सब्जेक्ट लाइए, क्यों नहीं, आप लाइए। सब्जेक्ट तो आप ही हैं सर। बायोपिक पे, वो बायोग्राफी पे, हाँ, उसके ऊपर फिल्म आपका कोई किरदार निभाए ऐसा? हाँ, देखते हैं, कुछ बातें तो चल रही हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे बायोग्राफी में, बाकी वो बहुत मोटिवेटिंग है और बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रिपिंग है वो। एनीथिंग बट खामोश। यंग एक्टर्स में से कौन आप चाहते हैं आपका किरदार प्ले करे आपकी फिल्म में? अरे बहुत अच्छे हैं, देखो क्या बोलते हैं, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब वक्त आता है अपने आप हो जाता है। आपका लड़का वो भी बहुत अच्छा है, क्या नाम है, रणबीर नाम है उसका, रणबीर कपूर भी अच्छा है, और रणबीर सिंह भी बहुत अच्छा है। सब वो अच्छे लड़के, आज के टैलेंटेड लड़के, हमारे भी अनिल कपूर रहे, गोविंदा रहे, ये सब कितने अच्छे लड़के हैं। अमिताभ बच्चन तो आज तक द बेस्ट एंड द लेटेस्ट न्यू कमर अगर कोई तो अमिताभ बच्चन ही बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय हमारे न्यू कमर भी एक से एक हैं। आपने बहुत देर पहले इनसे सवाल किया था कि पहले और अभी में क्या फ़र्क है, कि पहले की फिल्मों में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा था, कमिटमेंट एकदम। आज की फिल्मों में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, थैंक्स टू द न्यू कल्चर। तो जैसे हमारे बड़े अच्छे से लड़के प्रोफेशनल, ऐसे अच्छे मजे हुए डायरेक्टर मिलेंगे सुभाष गई जैसे, तो उसको सांचे में डाल लेंगे। सर सुभाष जी से पूछना पड़ेगा सर, एक व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 10 years? Yes. Next 10 years is to develop the next generation of filmmakers who can go and win Oscar awards every year. And we will do that. We'll see to it that our Indian filmmakers tell Indian stories with our own heritage, with our own Sanskriti, our own 10,000 stories, and reintroduce India to other nations, that we Indians are very strong. India is the strongest country, not by aping them,
but making their own films with their own culture, with their own people. This is my mission. If you ask me, through Whistling Woods only. So we develop them, we educate them, you go to your own roots, go to your own ancient heritage of the literature and pick up those stories and make films. If they could make 10 Commandments, why can't we make Krishna for the international market? Let them know who we are. That's our mission. जो इनकी बात को मैं समझा उसको एक लाइन में कह सकूं, एक वाक्य में तो कह मुझे सकता बहुत लाइनें बोलनी डेवलप पड़ती हैं। to develop the next 10 years he would like to take to develop the next generation into the best generation through Whistling Woods. सर वेरी नाइस ताली। सर एक लास्ट सवाल आपसे, आज विस्लिंग वुड्स का स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है, 20 तारीख को एक और रिजल्ट आएगा, उसके बारे में आपकी कोई राय? खामोश। बच्चन साहब के लिए आपने एक बार कहा था कि वो राष्ट्रपति बने देश के, इस बार 20 तारीख बस खामोश फाइट हो जाएगी सर। अभी तो खैर अभी तो स्कोप है नहीं, स्पेस है नहीं, लेकिन वो तो हमारी अभी भी ख्वाहिश है कि बच्चन साहब हर मुकाम पे कामयाब रहे हैं, हर मुकाम को देखा है, इतना एक्सपीरियंस आदमी, इतना बढ़िया आदमी, इतना पॉपुलर, इतनी अच्छी छवि है, तो अमिताभ बच्चन से मेरी नज़रों में बढ़िया उम्मीदवार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों राष्ट्रपति के तौर पर आपको नहीं देख सकता। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।